B, C, D, E, A, B, C, D, E is a regular pentagon. A, B, C, D, E is a regular pentagon of side 50 mm, of side 50 mm. बहुत बड़ा आएगा ये पेंटागन, तो एडजस्ट योर पेज अकॉर्डिंगली. अगर आपका पेज छोटा है A4 साइज का तो लिख लीजिए 50 mm, लेकिन आप ड्रॉ करते समय 40 mm के भी ड्रॉ कर सकते हैं. रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 50 mm, फुल स्टॉप. It is resting. It is resting on side AB in HRP. It is resting on side AB in HRP. With highest corner of the plane highest corner of the plane (35 mm) above HP. 35 mm above HP. Draw the projection of plane. Draw the projection of plane if the distance between projector of A and B is 25 mm. Is 25 mm. If you will look towards this problem, you will come to know that theta is also not given and phi is also not given. In previous sum of the problem, they have either provided theta or phi. इससे पहले के जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं उसमें उन्होंने थीटा या फाई हमें दिया था, बट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग रिगार्डिंग विथ योर थीटा एंड योर फाई. Now, when such kind of the problem will observe, first of all, calmly and quietly, you will have to write down the given things. The same thing I have done. Pentagon of side 50 mm resting on side AB in HRP. Once again, they are trying to confuse you. HP हमने सुना है, VP हमने सुना है. What do you mean by HRP? Once again, horizontal reference plane. right.
Once again, sometime they will just change the terminology and they will try to disturb you. Okay, so don't worry, HRP and EHP both are same. Horizontal plane and horizontal reference plane both are same. So when you want to solve the problem, then immediately you will have to adopt our methodology, and according to that methodology you will have to proceed. First thing, tell me what you are going to decide. पहले आप क्या डिसाइड करेंगे? XY लाइन XY लाइन डिसाइड करेंगे, शाबाश. XY line decide कर सकते हैं क्या? XY line is a part of each and every drawing. How you can decide the XY line? above XY line. Yes, whether that true shape of the figure is above XY line or below XY line. But before that, my friend, you have forgotten the very important thing. Almost 10 to 12 problems we have solved, and I am telling you time to time in every problem I have discussed. First of all, you will have to decide which diagram I need to draw. पहले कोणची डायग्राम ड्रॉ करणे, कुठली डायग्राम काढायची नेमकी? Pentagon. मग फर्स्ट पार्ट you will have to start from that. You need to draw the pentagon of 50 mm. 50 mm साइड. हमें क्या करना है? 50 mm साइड का पेंटागन ड्रॉ करना है. Then second question will arise. XY लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है या नीचे ड्रॉ करना है? सेकंड क्वेश्चन विल बी आफ्टर दैट. बताइए मुझे, XY लाइन के नीचे ड्रॉ करना है पेंटागन या ऊपर ड्रॉ करना है? ऊपर. बिलो. कौन है ऊपर? How many times should I tell you the same thing again and again? So when your object is in HRP, then you will have to draw below XY line. And when object is in VP, then you will have to draw above XY line. Now it is clear that I will have to draw the pentagon below XY line. लेकिन पेंटागन किस पे लाए हो रहा है? पेंटागन किस पार्ट पे रखा हुआ है बॉडी के? साइड ए बी. एब्सोल्युटली करेक्ट, साइड ए बी पे रखा हुआ है. तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू XY line. And on that line, I will draw a line of 50 mm. In this way. I'll provide the name. They have provided the name, that is, it is A and B. उन्होंने बताया हुआ है. I will provide the dimensions. This is 50 mm.
Now, next thing is what we are going to do. We will have to draw line of how many degrees? 108. 108. Absolutely correct. One 108. Then you will have to mark 50 mm on this particular line. Take this 50 mm distance in a compass, and by keeping on this point, you need to mark a curve. In this way. And join this particular line and complete your pentagon. Give the names C, D and E. अगर आपको कोई भी प्लेन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसको एक मेथड मैंने बताई थी. कैन यू रिकॉल दैट मेथड? सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट व्यू कौन सा होगा ये बताने के लिए हमारे यहाँ एक मेथड है. विच इज दैट मेथड? ES shape method. Yes, we have started this problem below XY line. So this is our first step. We have completed. What will be the second step? Projector. Yeah, we need to draw the projector, and through that we will have to complete the front view, okay, on XY line. So we will draw the projectors. This from E से एक projector मैं draw करूंगा. E से और C से एक सेम प्रोजेक्टर जाता है और D से एक प्रोजेक्टर यहां ड्रॉ. And I will make this particular line on XY line dark. And I will provide the names to it. A dash, B dash, C dash, E dash. And the last point, D dash. Okay. So first stage is completed now. What you will have to do? Can anybody tell me? अब मुझे क्या करना है? थर्ड स्टेप ड्रॉ करनी है. थर्ड स्टेप कहाँ आएगी? XY लाइन. यस, फ्रंट व्यू में अबव XY लाइन. और इस थर्ड स्टेप में हमें कौन सा एंगल यूज करना है? इंक्लिनेशन विथ HP और इंक्लिनेशन विथ VP. Inclination with HP. Yes,
इंक्लिनेशन विथ HP थीटा इज ऑलवेज अबव XY लाइन। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपने देखा तो आपको ये जरूर दिखेगा कि यहां HP का इंक्लिनेशन ही नहीं दिया हुआ है, दोनों भी कंडीशन दी हुई है। द फर्स्ट कंडीशन इज हाईएस्ट कॉर्नर ऑफ द प्लेन इज 35 mm अबव HP। तो मुझे अभी एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है कि अभी जो नेक्स्ट व्यू आएगा वो आएगा फ्रंट व्यू में, और मैंने एक बात बताई थी कि जो अबव HP है, अबव HP ऐसा जो नॉमेनक्लेचर आता है, ऐसा जो नेम आता है, वो अबव HP नेम कहां आता है? फ्रंट व्यू में आता है। इन फ्रंट ऑफ VP ये वर्ड टॉप व्यू से रिलेटेड है, तो यहां उन्होंने यूज किया है वर्ड अबव HP, यानी कि अबव HP यानी ये व्यू जो आएगा, ये व्यू आएगा फ्रंट व्यू में, और फ्रंट व्यू आएगा अबव XY लाइन, यानी कि थर्ड व्यू से ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। थीटा उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन थीटा के बजाय उन्होंने अदर इंफॉर्मेशन दी है कि हाईएस्ट कॉर्नर ऑफ द प्लेन इज 35 mm अबव HP। वो क्या है? 35 mm अबव HP है। अबव HP यानी XY लाइन के ऊपर है, बिकॉज अबव HP इज रिलेटेड विद द फ्रंट व्यू ऑलवेज। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. Hello, is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, Why sir. highest corner of the plane 35 mm above HP? तो above HP होता है यानी फ्रंट व्यू में होता है, और अब हमें फ्रंट व्यू ही ड्रॉ करना है। तीसरा व्यू जो होता है वो above XY लाइन होता है, above XY लाइन फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो फ्रंट व्यू जो है वो ड्रॉ करेंगे। कैसे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अ पॉइंट ओवर हियर। पहले मैं क्या कर देता हूं, एक पॉइंट सेट कर देता हूं यहां, एंड दिस पॉइंट इज माय पॉइंट A डैश B डैश। अब XY लाइन के ऊपर देखिए, XY लाइन के ऊपर मैं 35 mm का एक इंक्लिनेशन, एक लोकस ड्रॉ करता हूं। XY लाइन के ऊपर मैं क्या करता हूं? 35 mm का एक लोकस ड्रॉ करता हूं। This distance is how much? 35. Yes, it is 35। और जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे घर में, उनको पता चल गया होगा कि अभी क्या करना है। Now you will have to take A dash B dash to D dash distance in a compass। ये जो फ्रंट व्यू में हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखती है XY लाइन पे, इसका पूरा डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है, और A डैश B डैश के पॉइंट पे रख के आपको यहां कट करना है। This point will be your D dash point। ये पॉइंट आपका D dash पॉइंट हो गया। And you need to join this particular line directly। ये जो है, ये व्यू कंप्लीटली इस लाइन को आपको ड्रॉ करना है, एंड इन बिटवीन हियर your next point will come, which is nothing but C dash E dash। क्या किया है आपने? A डैश B डैश टू C डैश E डैश इतना डिस्टेंस लिया है और यहां ड्रॉ कर दिया है।
Now, next operation of the fourth step, यानी कि XY लाइन के नीचे आप जानते हैं कि क्या करना है। प्रोजेक्टर और जो लोकस हैं उन्हें एक्सटेंड करना है। कितना करना है? जितनी डायग्राम है उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। ई का पॉइंट है, ये ए का पॉइंट है, ये डी की लाइन है, ये बी की लाइन है, और ये सी का लोकस। अब आप देख सकते हैं वो तीन लाइन जो है वो करेक्ट नहीं आई है, सो आई नीड टू रीड्रॉ इट। rub this C to E. So in this way, we have prepared the net. हमने ये नेट बना दिया है और इस नेट में हमें ये A, B, C, D, E ये जो 5 पॉइंट्स हैं उनका सेटअप करना है. ओके, सो दिस इज A, this is B. Now you are, I think, expert to find out the points. C का locus यहाँ और C का projector. This is your C point. D का projector, D का locus, D point. And this is E का projector, E का locus, that will be your E point. Now you need to join all 5 points. A to B, B to C, C to D, D to E, D to A. थोड़ा सा रिड्यूस्ड पेंटागन आपका आ जाएगा. सर ई वरती हाँ, ई, हेलो, हाँ, यस, एनी डिफिकल्ट है जो खुला काम. ओके, so this third and fourth step is also completed. Now you tell me, we need to go to the 5th stage. अब 5th stage कहाँ आएगी? Below XY और above XY? Below XY आएगी. यहां आएगी मेरी 5th स्टेज. बिलो XY कौन सा इंक्लिनेशन होता है? पाई फाई होता है. ओके, वेदर फाई इज गिवन हियर. फाई इन्होंने मुझे दिया है क्या?
No, sir. No. Means angle is not given to me. मुझे एंगल दिया हुआ नहीं है, और उसके बजाय मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी है? डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर ऑफ ए एंड बी इज 25 mm. क्या दिया है उन्होंने इंफॉर्मेशन? डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर ऑफ ए एंड बी इज 25 mm. Means this particular condition I need to use in a 5th stage. ये 5th stage में मुझे यूज करनी है. Okay. Now let us start it. How to solve? First of all, I will draw a. मुझे एक बात बताइए आप कि 5th स्टेज में हमें क्या करना पड़ता है दिए हुए एंगल पर? जो काही एंगल दिलेला असेल त्याच्यावर आपल्याला काय रिड्रॉ करावं लागतं? क्या रिड्रॉ करना पड़ता है? पेंटागन. अरे यहाँ पेंटागन ही होगा, लेकिन 4th स्टेज में जो आपका व्यू आया है वो आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा. इसका सिंपल मीनिंग है कि आपको ये डायग्राम इस नेक्स्ट व्यू में रीड्रॉ करनी है, लेकिन आपको इंक्लिनेशन पता नहीं है. ओके, यू नीड टू रीड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम इन द नेक्स्ट व्यू, बट यू डोंट नो द एंगल. अब मुझे एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस कंडीशन. हाउ? जस्ट लुक केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्क वन प्रोजेक्टर. ओके, आपको क्या करना है? एक प्रोजेक्टर मार्क करना है. यहां मैंने एक प्रोजेक्टर मार्क किया. ऐसे अज्यूम कीजिए कि दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ ए. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं. और इस प्रोजेक्टर ऑफ ए के और बी के प्रोजेक्टर में कितना डिस्टेंस है? 25. 25. So what you will have to do? You will have to draw another one projector in this way, and this will be your projector of B. Projector of B. ओके, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? वो 25. दिया हुआ है 25. तो मैं ये यहां लिख दूंगा, बिकॉज यू नीड टू राइट द डायमेंशन एवरीवेयर wherever it is provided by the examiners. अब मैं क्या करूंगा कि ये 4th फिगर जो है, देखिए ये जो 4th फिगर है, ये 4th फिगर में क्या करूंगा? यहां रीड्रॉ करूंगा. तो प्रोजेक्टर ऑफ ए है, यानी इसका मतलब है ए का जो पॉइंट है वो यहां आ जाएगा. प्रोजेक्टर ऑफ बी यहां है, इसका मतलब है बी पॉइंट जो है वो बी के प्रोजेक्टर पे आएगा. तो पहले मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा आपको ये बहुत केयरफुली ड्रॉ करना पड़ता है. जरा ज्यादा नीचे आइए, आप इस एक्स वाई लाइन के ज्यादा नीचे आइए, और यहां आप पॉइंट ले लीजिए ए. ओके, थोड़ा सा ज्यादा नीचे आते हुए आपको यहां पॉइंट ले लेना है ए. दिस विल बी योर पॉइंट ए. और अब क्या कीजिएगा? ए बी इतना डिस्टेंस कंपास में लीजिए और ए पे पॉइंटर रखते हुए पॉइंट बी मार्क कीजिए.
ए पे पॉइंटर रखना है और प्रोजेक्टर ऑफ बी पे आपको क्या करना है, ये बी पॉइंट मार्क करना है. दिस विल बी योर पॉइंट बी हियर and join this particular point in this way. तो ये आपकी हो गई ए बी लाइन. ओके, इस पे आपको ये पेंटागन रीड्रॉ करना है. आपको क्या करना है, इस पे ये पेंटागन रीड्रॉ करना है. तो एक काम कीजिएगा, यहां से एक प्रोजेक्टर निकाल दीजिएगा इस लाइन से होते हुए इन दिस वे. अब ए का जो ऊपर का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रीड्रॉ करने की जो कोशिश है वो करनी है हमें. ए के ऊपर का डिस्टेंस यहां मार्क कर देंगे हम. बी के नीचे का डिस्टेंस यहां मार्क कर देंगे हम. और ए से ये जो डी के लोकस तक का डिस्टेंस है वो यहां मार्क कर देंगे. And we will draw locus from those points in upward direction. और अगर आपके पास स्पेस है तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो आपके पास ये 5 लाइनें हो गई. फिर आपको क्या करना है, ए के सामने के डिस्टेंस लेने हैं. पहले आपको लेना है ये डी तक का डिस्टेंस और फिर आपको लेना है ई तक का डिस्टेंस. एंड यू नीड टू मार्क ओवर हियर. और आपको क्या करना है, यहां मार्क करना है. पहले आपको ये डी तक के डिस्टेंस लेके मार्क करना है और फिर आपको ये ई तक के डिस्टेंस लेके मार्क करना है. सो इन दिस वे ऑल रेक्टेंगल विल अराइव ओवर देयर. नेम इट. ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, यहां का बाहर का पॉइंट जो है वो सी हो गया, ये जो पॉइंट एक्सट्रीम को है वो डी हो गया, एंड दिस पॉइंट इज योर ई पॉइंट. और ये जो एंगल है वो इंक्लिनेशन विथ वीपी है. ये जो ए बी है ना, ये जो एंगल कर रहा है जो मैंने रेड लाइन से दिखाया है, दिस इज योर इंक्लिनेशन विथ वीपी. इट इज फाई एंड दिस इज थीटा. यानी कि इस एंगल के ऊपर आपको पेंटागन जो है वो जनरेट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है. एंड यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट इट आफ्टर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स. तो बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ये डी से ई तक और ई से ए तक मेरा पेंटागन बन गया. This is very typical kind of the problem where both the angles are not given. So थोड़ा सा ध्यान देके समझ बूझ के साथ आप ये ड्रॉ कीजिए.
This is 25. Now the last stage, you know, that is our sixth stage. You like it to draw it above XY line. और सिक्स्थ स्टेज में आपको क्या करना है, प्रोजेक्टर और लोकस दोनों एक दूसरे के साथ ले जाने हैं. To avoid the confusion, E, C, D, and this locus of C and D. ये A का और ये B का लोकस प्रोजेक्टर. Now we need to set the point over here. ये देखिए, A का प्रोजेक्टर, A का लोकस. This will be my point A dash. यहाँ B का प्रोजेक्टर और B का लोकस means A and B both points will come on XY line itself. XY line पे ही दोनों पॉइंट आ जाएंगे. Now C, where is the C? ये देखिए, C का प्रोजेक्टर और C का लोकस. C पॉइंट आएगा, बाहर आएगा. Then D, ये है D पॉइंट. D का प्रोजेक्टर, D का लोकस. This will be your D dash. And E, so E का locus और E का projector means this point will be your point E dash. Now join all the points with the dark line. ये A से B तक, B से C तक, C से D तक, D से E तक. बहुत केयरफुली ड्रॉ करना पड़ता है. E से A तक. And this is your final solution. थर्ड स्टेज में सिर्फ क्या करना है, प्रोजेक्टर ऑफ A एक ड्रॉ करना है, उसके साइड में 25 mm का और एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है. A भी इतना डिस्टेंस लेना है और B पॉइंट वहां ले लेना है. और ए बी लाइन अगर आपने ऊपर XY लाइन तक आपने एक्सटेंड की तो आपको 5 मिलेगा और उस पे पेंटागन रीड्रॉ करना है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. नाउ यू विल हैव टू कंप्लीट दिस डायग्राम एंड यू विल हैव टू टेल मी व्हाट इज योर थीटा एंड व्हाट इज योर फाई.